Firstly, welcome everybody, and it's my privilege actually to welcome Govind over here. Uh, I really believe that none other than him would be a better guide for all of people regarding non-core jobs. जो लोग actually बहुत सारे लोग हैं who are confused between core job, non-core job, and how to prepare. What is the real scenario actually of non-core jobs in different IITs? And basically how to prepare for that, what are the key tools that you must have in order to grab a good job currently being from a different field, because most of the people who are over here actually who are from a field of civil or mechanical or different other field actually whoever here, but many of them are actually seeking jobs in the field of IT, computer science, and all these things, basically data science, data analytics. A lot of things are there. So, firstly, welcome, Govind, this session. Hey, hi Anirudh. Thanks for So, and inviting. It's yeah, it's and privilege for me as well to talk with you and have fun with your students. So let's yes, have a fun chat rather than a gyan giving session. yes, So yes, I would obviously, encourage everyone to make it two-way. So if yeah, students are asking the questions, it would be yeah, better. yeah. Firstly, anyone, you can just unmute yourself and ask question directly to Govind. Firstly, raise your hand. There is a raise hand option. I think everybody knows. So first raise hand, and after that, just unmute yourself and ask your question. If by that time the other person has already got a question, so just type in the message section. I will put it in front of Govind. Okay. So yeah, Siddhant, I Yeah. think is ready to ask some questions. Siddhant, are you there? I have got some questions from you people. I don't know why are you people sending me only. I don't know why. Okay. Yeah. Okay. You can Anyone? also chat and better if you speak directly. Yeah. So anyone actually having any questions so that they can directly ask in the chat section, or you can directly firstly raise your hand and unmute yourself and then ask the question. Okay. By that time, let's begin. That is, I have got some question. Firstly, the first question that I had got is, are every department eligible to sit for all the companies, like in different IT? That is the first question, Govind. So, what's your opinion regarding that? Take second. Hi. So this is a very tricky question. Yeah. So obviously, if you think every department is allowed in every company, it's not true. Mm, But it's not like 100%. So there are few companies, and I would say around 10% or 20% who do not allow everyone. mm, And I would say it's I'm quoting higher number. It could be mm, even less than 10%. So let's say Microsoft is coming. Obviously, mm, they are not going to mm. allow environment people or People, civil people, civil correct? people, huh? Because Mm, they CS. But most of the companies when they are coming, they are allowing. So I was part of placement team. I was a company yes, coordinator, and the first yes. job of company coordinator is whenever any companies filling the JEF. I forgot the full form of JEF. So sorry. So the first thing what we have to do is we have to convince the company that you should open for all, Job because in IT application form, I guess, right? Jeff, job yeah, application. job application form or something Mm, similar. Yeah, I think that only. mm, So the first job of placement team is to make it open for all. Obviously, mm, people like Microsoft won't allow, but mm, majority of the company do that. Okay, mm, so it's like and obviously like even if Microsoft open for all, mm. I think it would be very difficult to compete with the CS people. Yes, yes, yes. So Correct, obviously, because they are yeah, it trickles down to those companies mainly जो कि कंप्यूटर साइंस एंड अदर पीपल जो है, मान लो उनका हो गया, जब तक जो बचा कुचा कंपनी है उसी में कंपटीशन भी कम होगा, सिविल एंड अदर जो ब्रांच है उन लोगों के लिए, correct. इट वुड बी बेटर, तो राइट? 100% नॉट ट्रू कि सबके लिए अलाउ होता है, बट हाँ. मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज अलाउ एवरीवन. ओके, Hmm. एंड व्हाट Hmm. हैपन इज लाइक डे वन or day two the CS is completely gone. Okay, Completely so gone. Yeah. you do not have any choice to open for all. Okay, Yeah. it's a another truth.
So they will definitely allow everyone, most of the Hmm. companies. Yeah. Hmm. So that was your question, correct? Nilesh? Yes, yes, yes. Yeah, the next question that I have received is, sir, what are the softwares required to learn to get a 10 LPA plus package? Yes, सवाल है. Okay, Okay. 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 Oh, please. Uh, So, by the way, let me tell you actually that Govind had already grabbed the 10 LPA plus package. So, earlier, HCL, he was in HCL and later he got into Gist. So, definitely he is the right person to talk with regarding this. So, please go with. okay. So if you are preparing for the non-core, especially for the Hmm. IT, Hmm. so if you are getting job, Hmm. there are possibilities that you are getting 10 LPA plus only. Okay, Okay. yeah, obviously. So I think I remember like there were very few company. Hmm. I mean hardly 10% I would say, or less than 10%, Hmm. those who were coming for the software job and having LPA less than 10. Okay. Hmm. So if you're getting job in the IT, Hmm. definitely it's 10 LPA, or Hmm. on a safer side, it's 8 LPA. Okay. Yeah, yeah. And even like, and that too in a like day 10 or day 11, or on those days, there will be a Hmm. company having 8 LPA or something. Okay. Hmm. So that's the one thing. Now coming to the second part, I mean that's Yeah, the the question. first part, Hmm. key which softwares or which tools are required. Hmm. 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 So basically, when you enter, so like first year, I mean, no one cares. Like in the first semester, no one cares about the job because you are already pressured with the Semester and all. like, whatever courses are there. Correct. The lab is Hmm. there. The courses are there. So it's very Hmm. hectic to be honest. First semester. First So semester, आपको yeah. आइडिया ही नहीं होता कि क्या करना है. आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो एंड आपके असाइनमेंट्स कर लो. दैट इज इनफ. Okay. Enough, huh? So when we went for the winter break, Hmm. for the 1 month after the first semester, and when we came back, at that time Hmm. our seniors got placed in the December. Okay. So those were the people who were telling us what to do. So they people told us like, do the first pick up any language, preferably people do C++ or Python mostly. Hmm. Okay. Then they do the DSA, that is called data structure and algorithm. Hmm. मुझे आज भी नहीं आता है बहुत अच्छे से. मैंने बहुत कम किया था, बट अभी थोड़े से सिनेरियो चेंज हुए हैं मार्केट के. सो Hmm. आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप अच्छे से करो अगर आपको कोर जॉब लेना, नॉन कोर जॉब लेना है. Non-code. डीएसए Hmm. डीएसए मतलब अच्छे से आना चाहिए आपको. ओके. नाउ कमिंग टू दी अनदर पार्ट, और आता है एमएल, मशीन लर्निंग, एआई एंड मशीन Machine learning. लर्निंग. करेक्ट. So Machine there are learning few and courses on the Coursera, Udemy, and hmm. you can take you can take courses from another department as well. Uh, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कोर्सेज होते हैं. So you can pick up those courses and you can learn the machine learning and AI. So वो Hmm. प्रिपेयर करना होता है. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो लीड कोड, और भी बहुत कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है. करेक्ट. सो पीपल डू प्रैक्टिस देयर, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इट्स लाइक मैथ्स का पेपर है एंड Hmm. या गेट का, या आप जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ईजी हो जाता है आपको फाइनल में मतलब आंसर करना. करेक्ट. Hmm. So same thing, regular practice करते हो and then you crack the exam. Correct. So companies आती है, they Exactly. first take the coding round, and that is only DSA round. Correct. So you clear that and then you go for the interview, and interview is much simpler than that coding round. Correct. So clearing Yeah. coding round is the main task. उसके लिए आपको daily practice करना पड़ेगा. So if you are practicing sincerely and complete, and you have to pick up a side, like you have to do the machine learning or you have to do the core software, and normally people do both. And it's safe side, like आपको इधर नहीं तो इधर कहीं तो मिल जाएगा. And it's good practice, I mean nothing bad in preparing for both. And just thing is like whatever you are preparing, prepare it well and उसको अच्छे से practice करो. Yeah, and obviously the other part of the thing is कि किसी किसी को
जो है बिना कोई टूल सीखे भी 10 LP प्लस पैकेज मिलता है। बोला। या सो मैंने बहुत बेसिक कोडिंग, मैंने एक्चुअली एमएल प्रिपेयर किया था। नहीं एंड नहीं, मैं देन देयर तेरे वाज, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, तू तो ये भी पढ़ा था होता है यार, मतलब। ऐसी बात नहीं। ओके, द अदर हाँ, पार्ट इज एक्चुअली या ना, तो जोक्स अपार्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अदर जो एक एक पार्ट था एक्चुअली, उसका मैं जवाब मैं खुद भी देना चाहता हूँ। सम पीपल आर आस्किंग कि सर, इज इट पॉसिबल फ्रॉम बीइंग अ सिविल और मैकेनिकल बैकग्राउंड, जिनका पहले इसके साथ कोई नाता नहीं था, मतलब कोडिंग का, क्या मतलब ड्यूरिंग द 10 ईयर ये क्या पॉसिबल है उनको इस तरीके का जॉब मिला? तो मैं आपको एक तो सच्चाई बताता हूँ, जितना मुझे पता है ये जितने सारे लोगों को मतलब ये अच्छा अच्छा जॉब मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोविंद, कि दे वर नॉट ऑल्सो मतलब वेरी मच acquainted with this coding and stuff earlier, if I am not wrong, right? करेक्ट। वो तो फर्स्ट ईयर मतलब में सी, सब हाँ, फर्स्ट ईयर में सबको सी या सी प्लस प्लस पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में। हमने भी हाँ, वही पढ़ा था, और वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। एंड उसके यस, बाद नो वन केयर्स कि उसमें क्या था। क्या करेक्ट। था, हाँ, सब एंड भूल जाते उसके हैं बाद उसका। आप सिविल वाले होते हो, लाइक वी प्रिपेयर फॉर द गेट एंड वॉट एवर। एंड हम्म, कुछ याद नहीं रहता। करेक्ट। वो वहाँ आके एक कोरी स्लेट होती है ना, वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम देयर, कोरी स्लेट। एग्जैक्टली। सो इसमें मतलब कोई भी डाउट की बात नहीं है कि हाँ मतलब ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल ऐसे ही रहेंगे, मतलब हार्डली देयर विल बी सम पीपल जो कि मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कोडिंग के एंड स्टफ, क्योंकि एक नॉर्मल। बात बताओ यार, जिसने अगर बीटेक में कोडिंग वोडिंग किया होगा, उसको आईटी में वैसे ही जॉब मिल गया होगा। करेक्ट। वो क्यों आएगा मतलब एमटेक ने? जिसने गेट के लिए प्रिपेयर किया होगा वही आएगा। और मोस्ट ऑफ द सीएस को छोड़ के बाकी सारे लोग जो नॉन कोडिंग के लिए कम्पीट करते हैं, सबकी कहानी वही होती है। सबने गेट प्रिपेयर किया होता है या फिर बीटेक में भी होते हैं। ऑब्वियसली यू आर फाइटिंग विद बीटेक एज वेल। तो वो भी मतलब बीटेक वाले भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में मजा ही करते हैं। मतलब एवरीवन ऑब्वियसली, प्रिपेयर व्हेन, जब जरूरत होती है। करेक्ट। एक कहावत है ना एकदम कि 100 दिन पहले खाने से 100वें दिन की भूख नहीं मिटती। तो सिमिलरली एकदम। लोग मतलब जब जरूरत पड़ती है तभी स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, दैट्स गुड टाइम। आपके पास पूरा एक साल रहता है, एंड दैट इज सफिशिएंट अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो। एक एक और सवाल आया है, सर आई एम फ्रॉम सिविल। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो यार, मतलब मुझे डायरेक्टली क्यों भेज रहे हाँ हो? यार, पूछो ना। मतलब ये मतलब हाँ एक मेरा और अनिरुद्ध का कन्वर्सेशन होता है। हम तो मतलब हाँ बात हाँ वैसे ही फोन पे कर लेते हैं, हमें ही बात हाँ, करनी हम होती लोग है तो। फोन पे बात कर लेंगे यार, फिर मतलब फिर ये सेशन का क्या मतलब है? और तुम हम लोग जो है, मुझे क्यों सवाल भेज रहे हो डायरेक्टली? यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आप रेज योर हैंड एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन। चलो, एक सवाल आया, मैं उसको पहले ले लेता हूँ, तब तक अगर कोई मैसेज में भी टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हो, नो इश्यूज। बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट नन अदर देन ही वुड बी यू नो telling you so well actually about the reality and what are the requirements for a non-code job. अच्छा, और एक सवाल मेरा आया है यहाँ पे कि सर मैं तो सिविल बैकग्राउंड से हूँ, क्या लॉन्ग टर्म के लिए नॉन कोर जॉब या कोडिंग रिलेटेड जॉब सही रहेगा? ऐसा सर पूछा है किसी ने। यार इसका जवाब ना मेरे मतलब पास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। है ना? इट्स बिन 4 ईयर फॉर मी इन द आईटी। ओके। या एंड देखो यार, लाइक मतलब आई थिंक सम पीपल आर कंसर्न आईटी अबाउट इज द वेरी जॉब वर्सेटाइल मार्केट। ओके। yeah so yeah, Govind, sorry to interrupt you. I think what he आई wants to एम know is about आई एम कमिंग टू दैट। yeah. I think what he is actually asking is regarding the sustainability part, मतलब कि क्या हम सस्टेन कर सकते हैं वहां पे, ऐसे जो भी है, हाँ। cool. ओके। So I studied civil for the 4 year, okay, and then I came for the MTech, and that was in the environment। और एक सेमेस्टर एनवायरनमेंट पढ़ा, एंड फिर अगले साल प्रोजेक्ट ही कर रहे थे। करेक्ट। तो हम्म, एनवायरनमेंट एक साल पढ़ा, मोटा मोटी सिविल 4 साल पढ़ा, और 4 साल मुझे जॉब में हो गए। तो अगर आप 4 साल सिविल पढ़ के सिविल की जॉब में सस्टेन कर सकते हो, तो 4 साल नौकरी करके आप आईटी में भी सस्टेन कर ही सकते हो। करेक्ट। क्या बात मतलब है एकदम। इसमें वो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ऑब्वियसली मतलब, एंड आईटी इज अ जॉब लाइक, वहाँ पे देखो सिविल में क्या होता है कि आपको एक बार एक्सपीरियंस आता है ना, यू लर्न विद द एक्सपीरियंस। करेक्ट। इन आईटी आल्सो यू लर्न विद द एक्सपीरियंस, बट आईटी रिक्वायर्ड डेली प्रैक्टिस। आपको जॉब में आने के बाद भी नया नया चीज़ें सीखना होगा। सो आई एम फ्रंट एंड डेवलपर। मैं एंगुलर पे, एंगुलर आई एम वर्किंग ऑन द एंगुलर। एंड एंगुलर हर 6 महीने में अपना नया अपडेट देता है। तो आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ विद द एंगुलर एवरी 6 मंथ। करेक्ट।
सो दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज मतलब घर आके बुक खोल के बैठना पड़ता है, बट एक हम्म नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उसके हिसाब से आप ऑब्वियसली सिविल मतलब हर 6 महीने में अपडेट नहीं होता है, हर सिविल में नया हम्म। कुछ नहीं आता है, करेक्ट। चीजें वही है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आता है, नया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो जो हाँ, आप नया आता है तो वो सीख बहुत सालों बाद आता है, मतलब है कि हाँ, बहुत सालों मतलब बाद ऐसे आता है, हर करेक्ट। 6 मंथ में तो नहीं आता है। हाँ, सही। ये हर साल नहीं आती, करेक्ट। हम्म। आप जावा पढ़ रहे हो, जावा का अपडेट आता है 2-3 साल में, या हर चीज हर एक का पाइथन का भी अपडेट आता है, तो वो हम्म आपको आपके साथ सीखना पड़ेगा। एंड वो हम्म। मतलब आप सिविल से हो या फिर आईटी से हो, सब लोग करते हैं, और सब लोग कर रहे हैं तो आप भी कर दोगे। Yeah, that's the part actually. Yes. Any other questions for last few minutes? I want from all of you people. Anyone who are having question can directly ask. हेलो सर। Hello, who is this? Umang. Yes, Umang, please ask your हेलो, question. गुड Good evening. सर। एज अ सिविल गाय, अगर हम आईटी या सीएस डिपार्टमेंट में प्लेस हो भी जाते हैं तो हाँ, सर, मेरा ये पूछना था कि डिफिकल्टी इनिशियली क्या फेस करनी पड़ती, क्योंकि सर वो लोग तो हमसे फार बेटर होंगे। नो आइडिया। वो इन्वायरमेंट में फिर वहां पर सस्टेन थोड़ा करना पहले तो स्टार्टिंग में मुश्किल होगा। मेरा ऐसा पूछना है सर कि नॉन कोर में कोर के कंपैरिजन में वर्क लाइफ बैलेंस कितना इजी है या नहीं है, या हेक्टिक है थोड़ा, ऐसा पूछना था सर। Okay, so there are two part of question. I will take for first one first. So Umang, you said कि ऑब्वियसली उन लोगों को मतलब डिफिकल्टीज कम होगी। देखो, अगर तुम्हें कोई जॉब दे रहा है ना, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैपेबल कि आप उनके साथ compete करके जॉब लो, करेक्ट। उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है डीएसए वगैरह, वो लोग सीएस वाले पढ़ लेते हैं, बाकी ब्रांचेस वाले आपके साथ ही करते हैं, मतलब जब आप एक साल फाइनल ईयर में आके सब लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो आप एक साथ ही रेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए। ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे नॉन कोर में भी, मतलब बाकी ब्रांचेस में भी, बट आपको मतलब सारी जॉब थोड़ी लेनी है ना। तो ऑब्वियसली वो आपसे अच्छा कम्पीट करेंगे, वो डे 2 में, डे 3 में हो जाएंगे, आप शायद डे 4 में हो जाओ, वो डिफरेंस रहेगा, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। एंड अगर, और दूसरी बात, एंटर करने के बाद एक बार आपने किसी के साथ कम्पीट करके उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया है, मीन्स यू आर कैपेबल, करेक्ट। अगर आपको जॉब मिला, यू आर कैपेबल। और जब एक बार अगर कोई आपको 10 लाख पैसे दे रहा है, या 8 लाख दे रहा है, 12 लाख दे रहा है, तो ऐसे ही नहीं दे रहा होगा, करेक्ट। आपने आपको उसके लिए प्रिपेयर किया होगा, लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और जब एक बार आप उस लेवल पे आ जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप वापस नीचे चले जाओगे, करेक्ट। आपने एक अपना बेस बना लिया है, एंड एक बार जब आपने जॉब लिया, उसके साथ साथ आपका प्लेटफॉर्म बन जाता है जो बाकी का भी होता है, एंड बाकी चीज़ें आप टाइम के साथ सीख जाते हो। सेकंड पार्ट, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर दैट कि नॉन कोर में और कोर में क्या लाइक, कैन यू रिपीट योर सेकंड पार्ट कि आप कॉलेज टाइम पे हेक्टिक की बात कर रहे हो, या फिर जॉब में आने के बाद हेक्टिक की बात कर रहे हो? सर जॉब में आने के बाद सर, जॉब में आने हाँ, के तो बाद। आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने कोर में जॉब नहीं किया है। बट आई कैन आंसर दिस पार्सली, बिकॉज अभी जिस मैं कंपनी में हूँ, दैट इज एनवायरमेंट की कंपनी है, जस्ट जस्ट इम्पैक्ट। एंड मेरे साथ के, मेरे बैच के लोग जिन्होंने मेरे साथ एनवायरमेंट में एमटेक किया था आईआईटी बॉम्बे से, दोज आर हियर इन दी कोर जॉब, लाइक दे आर वर्किंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी पार्ट, एंड आई एम वर्किंग इन दी आईटी। मेरे कुछ सीनियर्स और जूनियर्स भी हैं यहाँ पे, they are also working here as a environmental engineer, करेक्ट। उस साइड में जो कोर बिजनेस है कंपनी का। एंड हम सब लोग सुबह एक ही टाइम पे ऑफिस जाते हैं, सब लोग एक ही टाइम पे ऑफिस से आते हैं, करेक्ट। एंड हो जाता है उसमें। I think what Umang is actually asking you to say, देखो ये आप एक चीज को आई थिंक समझ पा रहे हो उमंग, दैट बेसिकली व्हाट is talking about is in the same company. Look, there are two types of opportunities, right? Although it's an environment related company, but he was not earlier in this company. Govind was earlier in HCL, which is not an environment related company obviously. तो बट अभी जो कंपनी में ये है, वो एक एनवायरमेंट रिलेटेड कंपनी है, और इसमें दो टाइप के जॉब है, कोर जॉब भी है, नॉन कोर जॉब भी है। तो हर कंपनी में से होता है, कोर एक सेक्टर होता है, नॉन कोर। तो इस कंपनी के लिए जैसे कि दोनों सेम ही मतलब है कि इस तरीके से हो रहा है, लेकिन हाँ, कभी कभी जो सिविल में आपको जो फील्ड जॉब वगैरह मिलता है, राइट, तो वहां पे टाइम का
जो है मतलब जो प्रॉपर एक स्केड्यूल है कभी कभी नहीं बनता है, राइट। तो कहीं कहीं तो मैं मतलब मुझे पर्सनली ऐसे भी लगता है दैट that to some extent core job is more hectic than non-core job, to be very honest, मतलब if you are talking about civil field job, to be specific, ये तो मैं देखा हूँ एक्चुअली खुद। Yeah, obviously, तो those jobs are very tough. You have to be in the field, या like be it May or July or June, whatever. You have to go एग्जैक्टली, हाँ in the that जो इतना कड़क वाला धूप होता है. So एकदम obviously you एकदम can't compare that. But मेरे साथ जो है, they are also doing the office job, या correct? सो And ऑब्वियसली civil में ऐसा सेम नहीं पेज होता पे। कि yeah, if you are going for the civil as well, तो civil में जरूरी नहीं कि आपको वही मिले. If you are going with the MTech, you can take the design job as well. तो या वो लोग भी करते हैं. एग्जैक्टली, या तो डिजाइन जॉब इज मेनली योर डेस्क जॉब, तो उसमें तो उतना Correct. ज्यादा मतलब फील्ड वाला मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ यही है एक्चुअली। यस, एनी अदर क्वेश्चन उमंग, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर दैट यू हैव गॉट? यस सर, यस सर। एंड सर वन मोर क्वेश्चन के सर, ये सुनने में आता है कि सर रिसेशन में ले ऑफ सबसे ज्यादा नॉन कोर में होते हैं, अफेक्ट करता है, कोर में अफेक्ट नहीं करता। और सर हम नॉन कोर इन्वायरमेंट के होंगे और सीएसआईटी वाला इन्वायरमेंट होगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो ये नॉन कोर वाले बंदे होंगे ना, ले ऑफ से या यार रिसेशन से। देखो, मेरा ये पूछा था, ये क्या मिथ है या इस पे क्या कहना चाहेंगे इसका? uh, देखो, like I was working in the HCL and there were no layoffs. Okay, so I really don't know कि क्या scenario था. Oh, sorry, I was speaking या on mute. सॉरी सॉरी, हाँ हाँ प्लीज प्लीज, हाँ बोलो। Yeah, so I will repeat it again. या कि I was working in the HCL and there was no layoffs, correct? So I couldn't find out कि like क्या criteria होता है. But one of my friend was working in the Slack, and there people were from different backgrounds, and people were having experience of 10 year, 12 year. They got layoff, and they all were from the same background, correct? So over the 2 or 3 years, like when you are in the job, no one cares about कि आप किस background से आए थे. Even after 1 year, you even don't bother कि आप किस background से आए थे. Okay. When I was in the HCL, there was one interesting case. I knew someone very personally. He was doing Photoshop, okay, and then he learned HTML, CSS, and he did bachelor in arts, okay, and somehow he entered in the IT. उसने पहले HTML सीखा, JavaScript सीखा. He was doing Photoshop and then ये सीखा, and then he learned the JavaScript, and somehow he got in the, I don't know like how he entered. Obviously that's very difficult part, and हर किसी के साथ नहीं हो सकता. Obviously he was very a hard working guy. He was senior to me and I really respect him कि जो वो मेहनत करते थे. He came from the BA background, and BA भी उन्होंने like distance से किया था, and he was a very good performer. And ये हमारा एक बार पर्सनल टॉक हो रहा था, एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड कि मैंने तो इंजीनियरिंग भी नहीं किया. ओके, तो मैंने पूछा आपने क्या किया था. आई थॉट ही मस्ट बी हैव डन बीएससी इन आईटी और बीसीए व्हाटएवर, एंड ही टोल्ड कि मैंने तो बीए किया था, एंड दैट टू इन अ डिस्टेंस, मतलब. तो एंड मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है. ओके, सो दैट्स अनदर साइड ऑफ स्टोरी. तो डोंट थिंक कि मतलब 1-2 साल के बाद ना आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप किस बैकग्राउंड से थे. यू गॉट एक्वाइंटेड इन दैट एनवायरनमेंट. आपको चीज़ें आने लग जाती है. एंड आई टोल्ड अर्लियर एज वेल, करेक्ट, यू अगर आप जो प्लेस होते हो एट दैट टाइम यू आर मेकिंग एक प्लेटफॉर्म कि आप बेंचमार्क क्लियर कर चुके हो, करेक्ट. तो ऑब्वियसली वहां जाके आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा. कुछ चीज़ें आप मतलब कुछ लोगों को पहले से पता होगी, आप उनसे पूछ के सीख लोगे, करेक्ट. तो वैसा कुछ नहीं. या नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट गोविंद फ्रॉम सुमित दैट सर ईयर गैप का कितना इफेक्ट पड़ता है प्लेसमेंट में? ओके, सो मेरा ईयर गैप नहीं था. लाइक मैंने बीटेक के साथ, लाइक अनिरुद्ध, मैंने भी बीटेक के साथ ही किया था, बट अनिरुद्ध का रैंक ऑब्वियसली मेरे से बहुत अच्छा था. बट हमारे साथ में और भी लोग थे जिनका गैप था. बट आई थिंक किसी को भी ये नहीं पूछा गया कि गैप वगैरह क्यों है.
ऑब्वियसली आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ईयर गैप का फर्क पड़ेगा। वीरेंद्र बिकॉज भाई, दे आई थिंक टेस्ट द नॉलेज। करेक्ट, मतलब वीरेंद्र भाई उंगली मत करो। चलो कोई नहीं। सो सॉरी, जोक्स यस सर। अपार्ट, आई डोंट रियली थिंक कि ईयर गैप का कोई फर्क पड़ता है। एंड okay, I will tell one more story. One of my friend, she did BSc and then MSc in mathematics from the NIT, and then she went for MTech in mathematics and computer science. Okay, obviously, and उसके बीच में उसका BSc और MSc के बीच गैप था, MSc और MTech के बीच में गैप था, एंड अभी उसका MTech क्लियर हुआ है एंड शी गॉट प्लेस्ड एज वेल इन द कैंप्स। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ता है, मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है, ऑब्वियसली आई वाज नेवर विद द इंटरव्यू पैनल जो किसी ने डिस्कस किया हो कि ये तो ईयर गैप है, सो आई कांट टेल कि लोग क्या सोचते हैं उस साइड में, डेस्क के उस साइड में, बट आई नो पीपल ऑन आवर साइड जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, एंड किसी का एक्सपीरियंस में नहीं सुना कि उनको ये बोला गया कि आपका ईयर गैप क्यों था। ऑब्वियसली कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, एंड हाँ आप इंटरव्यू में जा रहे हो मतलब आपने कोडिंग टेस्ट क्लियर किया है, करेक्ट, so that could be a एग्जैक्टली। last question in an interview, you have to justify it, correct? अच्छा, उमंग इज आस्किंग, सॉरी सर आई जॉइन लेट, कैन यू टेल विच जॉब प्रोफाइल गोविंद सर हैव? अपना जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं। Okay, so next time anyone is asking question, you can simply address me Govind, no need to address me Govind sir, Anirudh Josh sir. Okay, मैंने HCL से स्टार्ट किया था, my designation was software engineer, but when I joined the HCL, my manager told कि we have a requirement for the UI, so you have to start for the UI। मैंने वहीं जाके Angular सीखा था, उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप साथ साथ छोटे मोटे बग फिक्स करो एंड स्टार्ट लर्निंग दैट, तो मैंने वहीं से एंगुलर स्टार्ट किया था, एंड करेंटली आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। So in तो software there यस, are two parts. There is a front end, there is a back end. So I work on the front end, जो आपका ब्राउजर पे आपका जो भी कैलकुलेशन होता है, जो आपको दिखता है, that's front end. हाँ तो ऑब्वियसली एक चीज आप लोग आई थिंक समझ पा रहे हो दैट ये जो है एक्चुअली ही इज आल्सो ही वाज लाइक द अदर पीपल, लाइक आप लोगों के जैसे ही ये भी थे, इनको भी पहले से मतलब कोडिंग का बहुत ज्यादा जो है नॉलेज ऐसा नहीं था, बट ये खुद ही वहां पे जाके सीखे ये सारे चीजें, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही went on learning what he told actually that continuous updation of is required actually. So that's a very important point that he had addressed. I think you are going to understand. Okay, okay, last 4.5 minutes left for anyone to ask questions. अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इनसे पूछिए अनम्यूट करके। लास्ट फोर Virendra, you मिनट्स are लेफ्ट। turning on your camera. You can ask anything if you want. नहीं नहीं, Virendra, या Rutvika, Vikas, Sumit. Who is this Ashik यार? उमंग दो। हाँ वीरेंद्र प्लीज आस्क। सर मैं बस सुना था, वो गलती से स्क्रीन टच हो गया वीडियो ऑन। अरे अरे, आई मीन इट्स फाइन यार, आई एम जस्ट जोकिंग, अरे जस्ट मजाक मतलब कर रहे हैं यार हम लोग, क्या मतलब कुछ मजाक कर रहा हूँ सीरियस। मैं मुझे चांस मिला हाँ कि एटलीस्ट आई कैन कॉल एनी नेम, करेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट वीरेंद्र, आई वाज जस्ट कि आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो हाँ हाँ वही बस इसीलिए। यार, चलो हमारा तो सिविल ऑफिस में हो ब्रांच। जाता है, मैंने हाँ लोगों तो को यहाँ ऑफिस में कैमरा ऑन करते देखा है, सो डोंट वरी। तो सुमित आस्किंग सिविल ब्रांच से अप्रोक्स कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है और एवरेज प्राइस कितना रहता है? सुमित इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड सेशन यूट्यूब पे लिया है कि हर आईआईटी का, क्योंकि ऑब्वियसली सिविल ब्रांच तो हर आईआईटी का अलग अलग होगा, तो हर आईआईटी वाइज कितना प्लेसमेंट होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, इसका मैंने डेडिकेटेड एक सेशन लिया, उसमें आप देख लो जाके। और भी कोई इसमें डेटा रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, कितना परसेंट प्लेसमेंट ऑल दिस थिंग्स, वो सारे डेटा मेरे पास है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उमंग इज आस्किंग सर लाइक यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम विलिंग टू लर्न पाइथन देन मशीन लर्निंग एंड सम एनएलपी और एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस फॉर अ सिविल इंजीनियर, सही होगा उस फील्ड में जाना? सही होगा? हेक्टिक ना हो जाएगा ज्यादा डेटा मॉडल और काम करना, एरर सॉल्व करना है तो? नहीं, हेक्टिक तो नहीं होगा। सो देखो, अगर मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप एक बार जॉब के लिए प्लेस हो रहे हो, यू आर मेकिंग दैट प्लेटफॉर्म, सो
फॉरगेट अबाउट कि आप हेक्टिक हो जाएगा। हो सकता है शुरू के 1 साल आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े। Obviously, yeah. दैट कुड बी वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप किसी कंपनी में चले जाओ जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा जो मैनेजर था उसको पता था कि मेरा बैकग्राउंड, आई मीन ही वाज आल्सो सिविल इंजीनियर। मेरा जो मैनेजर था, he was also civil engineer. So in our first conversation he told, and I was like, oh, I'm also civil engineer. Okay. He was having experience of 17 to 18 year at that time. तो जब उसने बोला तो मैंने बता दिया, नहीं नहीं कि मेरा बैकग्राउंड है। एंड इवन कुछ लोग हमारे साथ सीएस के भी थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी थे, एंड उसने सबको इक्वली ट्रीट किया। देखो, इट्स अगेन डिपेंड मैनेजर टू मैनेजर एंड पीपल टू पीपल। कुछ लोग थोड़ा सा जिनका वर्क कल्चर होता है कि मतलब मजदूरी करानी होती है, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसा होता है कि बंदा सीख के कर लेगा, करेक्ट। सो दैट कैन डिपेंड पीपल टू पीपल। बट वो अगर हेक्टिक होगा तो आपके साथ जो सीएस का है उसके साथ भी उतना ही हेक्टिक होगा जितना आपके साथ हो रहा होगा, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो, दैट इज गोइंग टू बिकॉज हाउ द पर्सन अगेंस्ट यू इज देयर। तो उसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। एंड ये मतलब कॉर्पोरेट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। Yeah, okay. लकीली मुझे अब तक So, अच्छे ही मिले हैं। okay, so that's why, like, क्योंकि जैसे कि आप लोग ऐसे हेक्टिक हेक्टिक इतना जो बोल रहे हो, देखो, that's why I brought Govind here because he had been working in 2 different companies, तो वो अलग अलग 2 कंपनी में वो काम कर चुके। तो फिर इसीलिए अगर इनके लिए इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं हो रहा था, क्योंकि what he mentioned, I think what he tried to mention this particular thing कि जब आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, तो उस जॉब के उस प्रोफाइल के लिए आप तैयारी करो, तो वो तैयारी हेक्टिक हो सकता है शुरू में, या क्योंकि आप एक दूसरे फील्ड से, राइट। लेकिन उसके बाद जब आपने वो जगह बना ही लिया वो तैयारी करके, देन आफ्टर दैट बेसिकली यू ऑल आर इन द सेम पेज, राइट। दैट्स आई थिंक व्हाट यू वांटेड टू से। ओके, so I'm ending this session actually, and it's very nice to have you, Govind, over here, and या high five जस्ट अ for, सजेशन, नो नो, आई yeah, एम रेजिंग हैंड। okay. ओके, Okay. या सो जस्ट अ सजेशन कि आप अभी थोड़ा सा कम, मतलब लास्ट ईयर थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे था आईटी का, है ना। सो गेटिंग जॉब वाज लिटिल टफ देन द यूजुअल नॉर्मल ईयर से। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप अगर जा रहे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग सिंसियरली। मतलब मैंने सिंसियरली प्रिपेयर नहीं किया था, स्टिल आई गॉट प्लेस्ड, करेक्ट। बट अभी थोड़े से सिनेरियो चेंज हुए। सो जा रहे हो, सिंसियरली करोगे, यू विल गेट इट, करेक्ट। So that's the only suggestion. Okay. So thank you, Govind, for being here and joining us, and all of you. Just if you do have any other questions, also let us know, and we will address it. Okay. Thank Yeah. you once again. Thank you. Bye bye, everyone.